how to analyze data, you are necessarily looking at 4 elements of your data. 1 that is being referred to as central tendency, 2 that is referred to as variation, 3 that is referred to as the shape, and obviously comparing your performance vis-a-vis some target will also give you some meaningful information. All of us understand mean, right? Mean is nothing but your arithmetic average. This is the most frequently used method of assessment of central tendency. So I started with the thought that data will have a tendency to always move towards its center. The 3 ways of measuring your central tendency, one is referred to as mean, another is referred to as median, another is referred to as mode. I was sharing that story to say that agar we've been careful to capture 45 days of data from the mileage of your car, and we found that the mean is 14, I could infer that tomorrow, if nothing special happens, we expect mileage to be near 14 kilometers per liter. Please mark the term near here. I'm not saying exact. So at most places, you will see that central tendency is always being measured in terms of mean. But mean के साथ एक बहुत बड़ा disadvantage है. It gets impacted by extreme values in your data. For example, I often share this story. एक particular London के suburb में there are 10 families living. Our family ka income is nearly about 1,000 pounds. All of you can see my screen, right? In Excel visible hai sabko? So assume that this is the data for the 10 families there. You would realize that how governments, how local bodies decide on your taxes, on your electricity bills, water bills, etc., is based on your financial capability. So similarly, the London authorities took out the average or the mean equal to average, and they deciphered that the average income of people living in this house in this area is about $1,026 pounds. They decided poor log hain, based on that, whatever had to flow, आपके लिए जो और amenities flow करनी थी, water bills को सस्ता करना था, electrical bill को सस्ता करना था, all of that was done. But वहाँ एक बहुत बड़ा piece of land was vacant. That piece of land was taken over by Mr. Lakshmi Nivas Mittal, who came in with his $46.5 trillion, $1 billion. Unit 10, 100, 1,000, 1,000 lakh, 10 lakh crore, 10 crore, 100 crore. एक और होगा शायद. Now look at what will happen to mean suddenly. The government authorities will now decipher that the average income of people living in this area is about 4 billion. Is that true? एक आदमी, एक लक्ष्मी निवास मित्तल अगर आपके डेटा में प्रेजेंट है, तो पूरे इन्फरेंस का बैंड बजा देगा. See this example, everyone? Yeah. Yes. Yes. I was training a group of Moser Bear. ये जो मूवी सीडीज बनाते थे. So this was a group of all zonal sales heads. So on a random डिस्कशन मैंने उनसे पूछा कि आपका सेल्स होता कैसे है. तो उन्होंने मुझे बोला कि हमारे सेल्स एजेंट्स लोकल शॉप्स में, गिफ्ट शॉप्स, आर्ची शॉप्स वगैरह में, दे गो एंड सप्लाई देम विद म्यूजिक सीडीज, एंड at the end of the day we we gather information about how many CDs have been sold, and ideally the number of CDs sold is hovering between 150 to 175. Let's assume that this is their data. So people sitting in the headquarters, उन्होंने कहा कि what is the average sales equal to average. The average CD sold is 163. Basis that they deciphered that 163 is what we usually sell. उसी के basis पे reward and recognition, थोड़ा gifting start हुआ कि anyone getting 180 sales per day will get this, कुछ आपको extra bonus मिलने लगा. इसी में से एक शॉपकीपर का रिश्तेदार was working for HCL Technologies, and one Diwali, HCL decided to give movie CDs to all its employees. Diwali gift में. उस दिन, एक particular day, please keep your eye on the mean value, 163 right now. उस एक particular day, 28,000 CDs were sold from one particular shop. Look at what it has done to your average. Now suddenly, some Ankit, some Babita sitting in some corner of India will say that anyone selling 534 is a poor performer. Everyone with me?
तो मेरा एवरेज सेल्स है 534। अगर तुम एवरेज भी नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब तुम खराब काम कर रहे हो। और कोई सड़ू लीडर रहा तो तुमको पीआईपी वगैरह पे भेज देगा अगर तुम 534 नहीं कर रहे हो तो। लेकिन हुआ क्या है? हुआ है कि मीन कि ये जो बैड हैबिट है of getting impacted by extreme values, it has killed the meaningfulness of your data. Everyone with me on this thought? बात समझ में आ रही है मेरी? Yes, sir. Yes, sir. So what is the alternate? The alternate is a value called median. Median is a positional value. आप डेटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हो और जो मिडिल पॉइंट है आपके डेटा का उसको अपन मीडियन कहते हैं. So if I calculate my median in the London story equal to median prior to Mr. Mittal, post Mr. Mittal, very little difference. Yes, everyone? Look at HCL story. Pre-HCL, what is my median? 164. HCL को include कर दिया तो no difference. Mean will be impacted by extreme values. Sir? So when you are not sure, you should always calculate median. Everyone with me? No, sir. I have a question. Please. कि मीडियन में हमें उससे टॉप टू बॉटम लगाना चाहिए ना, असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर में, या वी कैन डू इट लाइक दिस आल्सो? देखिए, एक्सेल इस्तेमाल कर रहे हैं, मिनिट ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कुछ नहीं करना है. वो सब कुछ अरेंज करना मिनिट ऐप खुद कर लेगा. ओके, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट. बट अगर आप मैनुअली कर रहे हो तो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना चाहिए. एक्सेल में भी जरूरत नहीं है? हाँ, एक्सेल भी खुद से कैलकुलेट कर लेता है. नथिंग फॉर अस टू डू. ओके. Everyone, are you guys with me so far? And median, Yes, sir. the only disadvantage that median has is that it is because it is a positional value. ये कोई अर्थमेटिक वैल्यू तो है नहीं, ये तो पोजिशनल वैल्यू है. अगर हम कह रहे हैं कि मेरा मीडियन 164 आया, इसका मतलब 50% डेटा 164 एंड बिलो है, 50% डेटा 164 एंड अबव है. इसके अलावा हम कोई से मीनिंग नहीं निकाल सकते. एवरीवन विथ मी? I go to stats, basic stats, graphical summary. Let's say I want to understand collections. Double click collections, press OK. If you see the bottom of your screen, you have 3 buttons here. The third button is for the output window. The second button is when you will get your data sheet. So because I need to look at the graph, I will go to the third window. Look at the information here. It is saying median is equal to 8,838. Everyone can see my screen, right? Yes, sir. Yes. 8,838.6 का मतलब 50% टाइम मेरा कलेक्शन has been 8,838.6 and below. बिलो कहां तक? बोले मिनिमम तक. सो मिनिमम से मीडियन तक कितना डेटा होगा? हमेशा 50%. मीडियन से मैक्सिमम तक कितना डेटा होगा? हमेशा 50%. That is the only meaning that we can draw from a median. Clear, people? Yes, sir. So median के साथ क्या disadvantage? I'm saying because median is a positional value, hence can't be used for computations. I mean, let's say we know that the average salary of people in this class is 2 lakh rupees. कितने लोग हैं हम लोग? How many people are we? 10 people in this session right now. So because the average is 2 lakhs, we can conclude that total खर्चा कितना हो रहा है कंपनी को? 20 lakhs. Simple, 10 into 2. Because वो एवरेज है. वही अगर मैं आपको बता दूं कि मीडियन 2 लाख है, मतलब 50% लोग ऐसे हैं जिनकी सैलरी 2 लाख एंड बिलो है, 50% लोग ऐसे हैं जिनकी सैलरी 2 लाख एंड अबव है. एंड सिमिलर टू द वैल्यू ऑफ मीडियन, जब हम वेरिएशन पढ़ने लगते हैं, वहां भी बहुत सारा पोजिशनल इंफॉर्मेशन
हम एक्सट्रैक्ट करते हैं. इफ यू सी द ग्राफ अगेन, यू हैव अ वैल्यू कॉल्ड मिनिमम, you have a value called first quartile, you have a value called median, you have a value called third quartile, you have a value called maximum. This is data for time on system, मतलब कितना टाइम आप ऑफिस में रहे. तो वी आर सेइंग एक तो वैल्यू हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं जिसको अपन मीडियन कह रहे हैं, इक्वल टू मीडियन. बट टू ऐड more meaning to the data, I decided to calculate the minimum collection, minimum toss and maximum toss also. Minimum का क्या फॉर्मूला? इक्वल टू min, इक्वल टू मैक्स. ये 0th पोजीशन है, ये 50th पोजीशन है, ये 100th पोजीशन. Similarly, 25th position is referred to as quartile 1, Q1. Nothing but equal to quartile, select the data, comma 1. Quartile 3 is to be calculated as equal to quartile. फर्स्ट क्वार्टाइल में क्वार्टाइल 1 लगाया था, इस बार कॉमा 3 लगा देंगे. नाउ लुक एट द टॉस डेटा अगेन. वी आर सेइंग 25% टाइम मेरा कलेक्शन कितना है, फ्रॉम 43.5 कलेक्शन नहीं टॉस. मिनिमम कितना टाइम someone has spent in the office? 43 hours in a month. Quartile 1 is at 132, which means that minimum say quartile 1 will always be 25%. People with me? Always, irrespective Yes, of sir. the value, this will always be 25% of the data. Similarly, quartile say median tak will always be 25%. Median to quartile 3 always 25%. Q3 to maximum always 25%. Babita, if business has given you a target of $10,000, can you read this information and tell me कितना percentage pass, कितना percentage fail? नीलम, anyone else? अगर अपन पहला क्वार्टाइल देखें, मिनिमम 743, 745, फर्स्ट क्वार्टाइल 7300, दोनों मेरे 10,000 से कम है. एवरीवन विथ मी? इसका मतलब ये Yes. 25% तो अपन टारगेट नहीं मीट कर रहे हैं. क्लियर? नेक्स्ट 25%, 7300 to 8838, ये भी 10,000 से कम है, तो ये भी फेल. 50% तो फेल हो गया ऑलरेडी. मीडियन से थर्ड क्वार्टाइल थोड़ा सा पास, थोड़ा सा फेल. कम कितना है? 8838. ज्यादा कितना है? 11130. तो इसमें से थोड़ा पोर्शन होगा जो 10,000 से नीचे होगा, थोड़ा पोर्शन होगा जो 10,000 से ऊपर होगा. उसके बाद 11130 टू 19,000. फैंटास्टिक, ये तो पूरा पास है बिकॉज ये सारा वैल्यू 10,000 से ऊपर है. यस, नो, ब्लैक व्हाइट पीपल विथ मी? Yes. Yes, sir. सर सेल्स टारगेट इज 10,000 ना? हाँ, okay, समझ गए. तो जरा ये मुझे समझा दीजिए. टाइम ऑन सिस्टम का आपका टारगेट है 140. कितना परसेंटेज पास, कितना परसेंटेज फेल? सो मिनिमम एंड फर्स्ट क्वार्टर इज फेल. इसका मतलब Then- 25%. यस, 25 फर्स्ट, 25 सेकंड, सेकंड 50% is. कपल सेकंड ऑफ क्या है, इन पास है कि फेल है? फेल है सर. 132 वाला. 132 से 153 है, तो 140 तो जी. पास है ना, तो थोड़ा सा हाँ, पास, हाँ, थोड़ा सा right. फेल. राइट राइट. उसके बाद वाला 153 टू 174 पास की फेल? पास सर, क्योंकि सब पास. इससे ऊपर है 140 से. 174 टू 341 ये भी पास. तो वी आर Yes. सेइंग पहला 25% पूरा फेल, दूसरा 25% थोड़ा सा पास, थोड़ा सा फेल. यस, आई विल कंक्लूड greater than 25, less than 50% टाइम अपन अपना टारगेट नहीं मीट. अग्री, डिसएग्री पीपल? Agree. So we started with the thought that when assessing median, it is better not to look at median only. It is advisable to look at certain other positional information like minimum, quartile 1, quartile 3, and maximum. And there are some other values that is derived from them. There is one value referred to as interquartile range. Nothing but quartile 3 minus quartile 1. Then you have another value referred to as range, which is nothing but max minus min. There's a replacement of interquartile range referred to as stability factor, which is nothing but quartile 1 divided by quartile 3. But a question for all of you. Range अगर आपको पता चल जाए तो उससे क्या मीनिंग ड्रॉ करोगे? अगर मैंने तुमको बताया कि मेरे कलेक्शंस का रेंज, इफ आई शो यू द ग्राफ अगेन एंड आई सी दैट माय, ये टाइम ऑन सिस्टम का डेटा है, एंड आई सी रेंज कैसे कैलकुलेट हुआ, मैक्सिमम 341 माइनस मिनिमम 43. तो रफली तुम्हारा रेंज ऑफ नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स इन द ऑफिस इज अबाउट 300 आवर्स. करेक्ट? Right, sir. रफली
roughly. क्या मीनिंग इसका? What do you draw? What is the meaning that you are drawing? Look at the collection data. Worst क्या किया तुमने? 745. Best क्या किया तुमने? 19,083. इन दोनों के डिफरेंस को अपन रेंज बोल रहे हैं. So range of collection is about $18,000. Everyone, इसका क्या मीनिंग? So if I were the team manager and I reported to you, you are the process owner. मैंने तुमको बताया सर कलेक्शन का रेंज 18,000 चल रहा है. What does this mean to you? First thing first is span. We know the minimum and max value and the spread of data. Correct. Absolutely bang on. एक चीज तो समझना है सब लोगों को कि वेरिएशन ज्यादा is bad for us. So if I have a variation of 18,000, God bless the system. वेरिएशन जितना कम हो, बबीता तुमने अपनी टीम को टारगेट दे रखा है 8,000 का, तो ज्यादातर लोग तो 8,000 के पास होने चाहिए, which means my minimum and my maximum should be nearly about 8,000. कुछ लोग let's say 7,500 कर रहे हैं, कुछ लोग समझो कि 8,500 कर रहे हैं. तो रेंज मेरा 1,000 होगा तो समझ में आता है. ये जो रेंज आया तुम्हारा 18,000 का, तो अगर मैं प्रोसेस का वाइस प्रेसिडेंट हूं तो कल सुबह मैनेजर साहब की छुट्टी, टर्मिनेटेड. इतना अगर वेरिएशन होगा कि कोई बच्चा है जो 745 कर रहा है, कोई बच्चा है जो 19,000 कर रहा है, पूरा राम भरोसे दुकान चला रखा है. करेक्ट ना एवरीवन? Right, sir. रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है. इन्वेस्टर आया AIG, उसने मुझसे क्या पूछा कि पिछले 4 साल का सेल्स का डेटा देखो और देख के मुझे रेंज बताओ. क्या जानना चाह रहा है कि क्या तुम्हारा सेल्स कंसिस्टेंट है या बहुत ज्यादा वेरिएशन है. हमारा कैसा होता है, किसी महीने 15 लाख का सेल्स है, किसी महीने 2 करोड़ का. इतना ज्यादा वेरिएशन होगा तो एज ए इन्वेस्टर तुम श्योर नहीं हो ना कि इनको कितना पैसा आएगा. करेक्ट ना एवरीवन? Exactly. Right, sir. अगर वही तुम्हारा सेल्स अज्यूम करो कि 25 ही लाख है और मोटा मोटा 25 से 28 ही चल रहा है, उसके ऊपर नहीं जा रहा है, तो रेंज क्या हुआ? 25 to 28 मतलब 3 लाख का वेरिएशन अगर उसको दिख रहा है तो लग रहा है कि कंसिस्टेंट है प्रोसेस. नहीं तो क्या दिख रहा है कि जिस महीने ये लोग अच्छे से काम करते हैं 2 करोड़ पहुंच जाते हैं, फिर सो जाते हैं तो फिर 20 लाख का पहुंच जाते हैं. आर यू विथ मी एवरीवन? Right, sir. वेरिएशन इज अ वेरी क्रिटिकल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन. मेरा प्रोसेस कंसिस्टेंट होना चाहिए, which means range should be low. High value represents high variability in data, which is bad for the process. Similar एक वैल्यू है जिसको अपन इंटरक्वार्टाइल रेंज कह रहे हैं. रेंज में क्या किया? हाईएस्ट माइनस लोएस्ट किया. यहां अपन क्या कर रहे हैं? बीच के 50% का हाईएस्ट माइनस लोएस्ट कर रहे हैं. क्वार्टाइल 3 इज व्हाट? 75th पोजीशन. क्वार्टाइल 1 इज व्हाट? 25th पोजीशन. तो मतलब बीच के 50% के डेटा में कितना वेरिएशन है? लेट्स कैलकुलेट दिस वैल्यू. थर्ड क्वार्टाइल 11,130, फर्स्ट क्वार्टाइल 7,300. इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरा इंटर क्वार्टाइल रेंज निकलेगा. एवरीवन विथ मी? Yes. फिर वही बात, जितना कम होगा ये वेरिएशन उतना मेरे लिए अच्छा है ना? आई वुड रादर वांट कि मेरा वेरिएशन एज लिटिल एज पॉसिबल हो. दिस व्हाट यू सी राइट नाउ ऑन योर स्क्रीन इज रेफर्ड टू एज अ बॉक्स प्लॉट. ये ही मीडियन वाला सारा डेटा ये यूज करता है. जो लोएस्ट पॉइंट है ये मिनिमम है, जो हाईएस्ट पॉइंट है ये मैक्सिमम है. सेंट्रल में जो ये लाइन दिख रही है दिस इज कॉल्ड मीडियन. बॉक्स का अपर लाइन इज योर क्वार्टाइल 3, बॉक्स का लोअर इज कॉल्ड क्वार्टाइल 1. लुक एट दिस डेटा नाउ. नीचे से पढ़ना शुरू करते हैं. n इज इक्वल टू 86 मतलब टोटल डेटा पॉइंट कितना है? 86. विस्कर्स 2896, 8628. मिनिमम कितना हुआ इस ग्रुप का? 2896 इज द मिनिमम. हाईएस्ट कितना है? 8624. एवरीवन विथ मी? Yep. आपका क्वार्टाइल 1 कितना है? आपका क्वार्टाइल 1 इज 5240. मीडियन कितना? सिमिलरली अब मुझे अगर ये लाइंस, ये वाली लाइन मेरा मीडियन है, लुक एट
ये 3 अलग अलग सब ग्रुप हैं। ये पीपल हु हैव कम फ्रॉम कॉलिंग बैकग्राउंड, पीपल हु हैव कम फ्रॉम कस्टमर सर्विस बैकग्राउंड, पीपल हु हैव कम फ्रॉम आउटबाउंड सेल्स बैकग्राउंड। मीडियन किसका सबसे ऊपर दिख रहा है? सबसे ज्यादा तो इसी का दिख रहा है। एवरीवन, Yes. लाइन तो सबसे ऊपर यही है। तो मेरे कस्टमर सर्विस बैकग्राउंड वाले बच्चे ज्यादा अच्छा कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मीडियन। एंड इफ आई वर टू ड्रॉ अ लाइन, लेट्स, हमारा टारगेट क्या था? 10,000 ना। रिड्यूस कर देता हूँ, 8,000 कर देता हूँ। आउटबाउंड सेल्स वाले बच्चे लगभग टारगेट नहीं मीट कर रहे हैं। करेक्ट ना? थोड़ा सा ऊपर है मैक्सिमम। करेक्ट ना एवरीवन? Yeah. Right, sir. कस्टमर सर्विस वाले 100% बच्चे टारगेट मीट कर रहे हैं। देयर इज नो इंस्टेंस वेयर दे हैव नॉट मेट आवर टारगेट ऑफ 8,000। यहाँ पे नियरली क्वार्टाइल 1 पे आ रहा है, मतलब 25% डेटा फेल करेगा। समथिंग लाइक दिस एवरीवन। ये बना के देखो जरा। ग्राफ बॉक्स प्लॉट। आई विल चूज द सेकंड वाला ऑप्शन। ऊपर में डाला कलेक्शन, नीचे में कोई भी ऐसा वेरिएबल, लेट्स से आई वांट टू कंपेयर इट अगेंस्ट जेंडर। मेल फीमेल कैसा कर रहे हैं? इफ आई सी, फीमेल्स का मीडियन इज अबाउट 92-39, while मेल का मीडियन इज अबाउट 86-85। इसका मतलब फीमेल्स मीडियन वाइज थोड़ा सा बेटर कर रही हैं। इफ यू टच दिस बॉक्स प्लॉट, it will give you your understanding of what that subgroup performance is. Yes, no, black, white, थोड़ा समझ में आया? पूरा समझ में आया? पूरा गोल हो गया? See if it's visible. एक बार दोबारा जाओ। व्यू के नीचे एक रेक्टेंगुलर बॉक्स दिख रहा है तुमको? ऊपर जाओ, ऊपर। व्यू के नीचे एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, उस पर क्लिक करो। गो टू स्केल, नीचे जाओ। थर्ड ऑप्शन रेफरेंस लाइंस, ऊपर जाओ। थर्ड ऑप्शन रेफरेंस लाइंस, 8,000 डाल दो। ओके। जिसके भी ऊपर माउस अपना ले जाओगे वो तुमको सारा डेटा शो कर देगा। बॉक्स पे जाओ, मेल के बॉक्स पे जाओ। हाँ, नाउ रीड दिस। इट सेज n इज इक्वल टू 250, मतलब टोटल डेटा पॉइंट्स कितने हैं मेल्स के? 250। विस्कर 1162, 16304। तो सबसे कम कितना कलेक्शन किया है? 1162। सबसे ज्यादा कलेक्शन कितना किया है? मैक्सिमम वैल्यू कितना है? 16,304। एवरीवन विथ मी? क्वार्टाइल 1 का वैल्यू दिया हुआ है। नाउ एक एक डेटा पॉइंट पेन पेपर पे लिखो और एक एक डेटा पॉइंट का कंपैरिजन करो मेल फीमेल का। मैक्सिमम कितना है, मिनिमम कितना है, एन कितना है, एंड देन लेट्स टॉक। एवरीवन विथ मी? Okay, sir. किसी से ये बॉक्स प्लॉट नहीं बन रहा हो तो प्लीज पूछना। Sir, I share the screen share. करो करो। Sir, visual screen. आ गई, हाँ आ गई। बॉक्स पे क्लिक, बॉक्स पे अपना माउस ले जा। हाँ सर। सेकंड वाला बना, सेकंड वाला विद ग्रुप्स वाला। ओके। नीचे ऊपर कलेक्शन, ठीक है। नीचे टॉस हटा, नीचे से टॉस हटा। नीचे वाले पे टॉस डाला हुआ है तूने, जी। टॉस रिमूव करो। हाँ जी, हटा दिया जी सर। यहाँ पे नीचे वाले बॉक्स पे क्लिक करो, नीचे वाले बॉक्स पे। जी सर। हाँ, अब कर ले कुछ भी, शिफ्ट वाइज कर ले। शिफ्ट पे डबल क्लिक कर।
डबल क्लिक, Yeah, sir. स्केल, स्केल, रेफरेंस लाइंस 8000। Okay, sir. ओके ओके Hi, sir. Okay, Mark. Can I share my screen? Okay, sir. 2 मिनट्स। पेन पेपर पे Yeah, sir. लिखो, Done. तीनों शिफ्ट का इंफॉर्मेशन को पेन पेपर से लिखो और कंपेयर करके बताओ कौन सा शिफ्ट बेटर कर रहा है। ठीक है Okay, sir. अंकित, sir. प्लीज शेयर योर स्क्रीन। Sure, sir. So let me know once it's visible. हाँ, कलेक्ट नीचे वाले बॉक्स पे क्लिक कर ले। क्लिक कर अंदर। हाँ, अब कुछ भी उठा लो वहां से, प्रीवियस एक्सपीरियंस या टीम लीडर, फर्स्ट वाला उठा लो, फर्स्ट वाला। Okay. ओके, एक मिनट, स्केल, सॉरी, दोबारा करो। ग्राफ के नीचे वाला बटन दबाओ। हाँ, वो ग्राफ के नीचे वो रेक्टेंगुलर बटन आ रहा है ना, वापस जाओ, कैंसिल करो। हाँ, करेक्ट। स्केल, रेफरेंस लाइंस 8000। ओके, नीचे जूम वाले ब्लू वाले रिबन पे जाओ, गो डाउन, एकदम नीचे जाओ। पहले वो आउटपुट वाला विंडो ले आओ, और नीचे, गो डाउन। आपके लैपटॉप वाला जो ब्लू रिबन आ रहा है बिल्कुल बॉटम में, जहां जूम का बटन आ रहा है, उसके बगल वाला बटन दबाना है, उसके बगल वाला थर्ड वाला रेक्टेंगल जो है। करेक्ट। अब एक एक को टच कीजिए, एक एक का इंफॉर्मेशन नोट कीजिए और मुझे बताइए कौन सा टीम लीडर बेस्ट कलेक्शन कर रहा है, किसका वेरिएशन सबसे ज्यादा है। देखो, एक बेसिक बात तो सब लोग समझ लो, मुझे जो दिख रहा है मोहित का टेल बहुत लंबा है। एवरीवन, कैन यू सी दैट? उसका विस्कर बहुत लंबा है। यस, नो? Yes, sir. इसका मतलब सबसे ज्यादा वेरिएशन मोहित में ही होगा। कितना आ रहा है? मिनिमम 1047, हाईएस्ट 15,000। बाप रे, बहुत $14,000 ज्यादा। का वेरिएशन है। जबकि पंकज में जाओ, पंकज का विस्कर कम लग रहा है। पंकज में जाओ, नेक्स्ट वाला, मिनिमम 5,000, मैक्सिमम 14,000। फिर भी वेरिएशन ज्यादा है, लेकिन एटलीस्ट उतना ज्यादा वेरिएशन नहीं है। करेक्ट एवरीवन? अबाउट 9,000 का वेरिएशन है। Yes. Correct. यही सब पढ़ना होता है। तो प्लीज अंकित, इसको पेन पेपर पे नोट करो और मुझे कंपेयर करके बताओ तुम्हारे अनुसार बेस्ट परफॉर्मर कौन है। 15,000 है। Can I also share my screen? हाँ प्लीज। The box for on quality scores and new 15,000 है। visible. ये 12,000 तो ये तो 01 क्या है? वेरिएशन कम So है। I think this is the कम tenure. variation, Zero समझ maybe के the non-tenure and 1 is the tenure. ये तो उल्टा ही हो गया। टेनॉर्ड वाले एक भी बच्चा टारगेट नहीं मीट कर रहा है। नहीं, पूरा डेटा तुम्हारा उस पे बॉक्स पे क्लिक करो, बॉक्स पे माउस ले जाओ, वहां नहीं, नीचे Box. जो बॉक्स प्लॉट जो आया है, ब्लू कलर का डब्बा जो है, Yes. हाँ, इसमें मिनिमम कितना है? 80, मैक्सिमम कितना है? 94। इसका मतलब थोड़ा सा पास है ये, 90 से ऊपर जा रहा है ना। Yes. जबकि क्वार्टाइल 3 तुम्हारा कितना है? 88। 88. मतलब 75% तो पक्का फेल है। दूसरे वाले डब्बे पे जाओ, मिनिमम मैक्सिमम देखो, मैक्सिमम ही तुम्हारा 89 है। करेक्ट ना? Yes. टारगेट है तुम्हारा 90 और 100% टेनॉर्ड बच्चे तुम्हारा टारगेट नहीं मीट कर रहे हैं। मतलब सर, कुछ इसमें प्रोसेस में टारगेट पहुंचिए। कहाँ से दिख रहा है? ये जो अभी रेड लाइन मैंने जो विस्कस बनवाई है, नहीं, वो जो अगर 90 हम इसको स्टडी करना चाहे, इसमें से हमें दिखेगा कि व्हाट इज द टारगेट ऑन दिस वन, क्योंकि Q1 मीडियम Q3 तो ये लिखा है, टारगेट तो यहाँ मेंशन नहीं है ना।
वो जो रेड लाइन ड्रॉ किया है इसने 90 वाला, Okay, okay, that is the target. Okay. सर मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ. कविता हाँ ये जी. 3 4 5 6 क्या है? ये नीचे बॉटम में जो आ रहा है, हमने सब ग्रुप कौन सा लिया है? ये 3 4 5 6 ये क्या आ रहा है? Number of escalations में भी. Escalations और quality score. कोई दूसरा ले ले जिसमें अच्छा. कैटेगोरिकल डेटा हो, जिसमें इंग्लिश में लिखा हो वेरिएबल का नाम. New hires, attrition. क्वालिटी स्कोर वर्सेस टूल स्लोनेस. अच्छा वो टारगेट वहां पड़ा हुआ है, सॉरी. पीक सीजन वाला चलेगा सर? पीक सीजन वाला डेटा कैसा है? पीक सीजन यस नो, ठीक है तब तो हो जाएगा. तो इसमें रेफरेंस लाइंस भी पूछ रहा है, डालना है? तो आप जानो, आपको टारगेट से कंपेयर करना है तो डालना चाहिए. पीक सीजन कहाँ गया? पीक सीजन स्केल कितना था? क्वालिटी का टारगेट 90 ना? 95. ओके व्हाटएवर. पीक सीजन हो या ना हो, पूरी दुकान राम भरोसे है. Let's come back to what we were discussing. जब पोजिशनल इंफॉर्मेशन देख रहे हैं तो वी आर लुकिंग एट मिनिमम क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 3, मैक्सिमम. जब इंटर क्वार्टाइल देख रहे हैं वी आर लुकिंग एट वेरिएशन इन द मिड 50%. Another way to understand variation is to understand distance of data from the center, which is manifested in the form of standard deviation. बाकी दो यूज नहीं होते हैं लेकिन फिर भी बता देता हूं. Let's understand what they are. When we want to, let's say I have 5 data points and I want to find the distance of data from center. तो पहले सेंटर का वैल्यू निकाला 9, 12, 14, 15, 15 by 5, 3. तो डिस्टेंस कैसे निकालें? 1 minus 3. पहला डेटा पॉइंट का यही डिस्टेंस है फ्रॉम डेटा पॉइंट, फ्रॉम द सेंटर एवरीवन. Yes. दूसरा सेकंड डेटा पॉइंट इज 2, सो 2 minus 3. थर्ड डेटा पॉइंट 3, so 3 minus 3. नेक्स्ट डेटा पॉइंट 4, 4 minus 3. नेक्स्ट डेटा पॉइंट 5, 5 minus 3. यही हो गया हमारा डिस्टेंस ऑफ डेटा फ्रॉम द सेंटर. एवरीवन कैलकुलेट करके बताओ कितना वैल्यू आ रहा है. 1 minus 3 is -2. नेक्स्ट -1, नेक्स्ट 0, +1, +2. तो एक्चुअली इसका सम हमारा 0 हो जाता है. हम तो चाहते थे डिस्टेंस निकालना, बट बाय लॉजिक जब सारा डेटा पॉइंट कंसिडर करेंगे तो डिस्टेंस ऑफ डेटा फ्रॉम द सेंटर विल ऑलवेज बी 0. दैट इज व्हाई स्टैटिस्टिशियंस हैड नो चॉइस बट टू स्क्वायर द वैल्यू. तो हम क्या कर रहे हैं? 1 minus 3 स्क्वायर, 2 minus 3 स्क्वायर, 3 minus 3 स्क्वायर, 4 minus 3 स्क्वायर. कैलकुलेट करते हैं. 1 minus 3 is -2. -2 का स्क्वायर 4. 4. Total is 8. नेक्स्ट -1 स्क्वायर इज 1. नेक्स्ट 3 minus 3 0 का स्क्वायर इज 0. नेक्स्ट 4 minus 3
1 का स्क्वायर 1, नेक्स्ट 2 का स्क्वायर 4, मतलब 10 निकला। लेकिन ये निकला क्या? दिस इज नथिंग बट स्क्वायर ऑफ sum of square everyone, इसीलिए इसका नाम SS या सम ऑफ स्क्वायर है। इसका एक वैल्यू है जिसको हम वेरिएंस या एवरेज ऑफ डिस्टेंस कहते हैं, नथिंग बट सम ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय n-1। सम ऑफ स्क्वायर कितना निकला? 10 डिवाइडेड बाय डेटा पॉइंट कितने हैं हमारे पास? 1 2 3 4 5 5 5 - 1, मतलब 10/4 equal to next standard deviation is nothing but square root of याद बस इसको रखना है, बाकी was just for your knowledge. Everyone with me? Yes. Yep. How do we use it? एक बेसिक लॉजिक है स्टैटिस्टिक्स में जिसको हम नॉर्मेलिटी कहते हैं। There are 3 rules. Rule 1, add and subtract one standard deviation from mean will always give you 68% of your data. For example, if the mileage of your car is equal to 15 with standard deviation of 1, we are saying 68% टाइम तुम्हारा गाड़ी का माइलेज कितना होगा? 15 + 1, 15 - 1, 15 + 1 is 16, 15 - 1 is 14। तो 68% टाइम तुम्हारी गाड़ी कितना माइलेज देगी? People with me? Yes, sir. Yes. Rule number 2, फर्स्ट टाइम 1 स्टैंडर्ड डिविएशन ऐड सब्ट्रैक्ट किया था, इस बार 2 स्टैंडर्ड डिविएशन ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे। इट विल ऑलवेज बी 95% ऑफ योर डेटा। मतलब इन द प्रीवियस स्टोरी my mean is 15, my standard deviation is 1, मतलब mean plus 2, 15 minus 2, say 15 plus 2, मतलब 13 से लेके 17 तक कितना लाइकली है कि तुम्हारी गाड़ी का माइलेज 13 से 17 होगा? 95%। Everyone with me? Yes. Yes, sir. Rule number 3, plus minus 3 standard deviation will always give you 99.73%. फिर वही करते हैं, -3, -15 + 3, मतलब 12 से लेके 18 तक। आई एम सेइंग आई एम 99.74%,
3% श्योर कि मेरी गाड़ी का माइलेज कितना होगा, 12 से लेके 18 तक. We are saying any data adhering to these three rules is referred to as normal data. Process is referred to as within control process. अगर एक भी रूल टूटा, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, कोई भी रूल टूटा, अज्यूम करो कि किसी एक दिन तुम जाम में फंस गए और उस दिन तुम्हारी गाड़ी ने तुमको 4 किलोमीटर का माइलेज दिया, तो वी आर सेइंग वो नॉर्मल नहीं है, वो स्पेशल बिहेवियर है. एक्सेप्शंस, हाँ, जो भी एक्सेप्शन हुआ तुम्हारा. सर ये 68% हमने अज्यूम किया या सर ये स्टैंडर्ड है? रूल है, ये रूल है, हाँ स्टैंडर्ड है. तो कल तक सर लाइक फर्स्ट डेविएशन 68%. मीन प्लस माइनस 1 स्टैंडर्ड डिविएशन 68%, मीन प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड डिविएशन 95%, मीन प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड डिविएशन 99.373%. कल तक द टर्म नॉर्मल वाज अ इंग्लिश टर्म. फ्रॉम टुडे नॉर्मल का क्या मतलब? 3 रूल्स हमारे पास हैं. अगर ये 3 रूल्स कोई डेटा अडहियर कर रहा है तो उस डेटा को हम नॉर्मल डेटा कहते हैं. अगर डेटा इन तीनों में से कोई भी एक रूल तोड़े या तीनों रूल तोड़े तो हम उस डेटा को नॉन नॉर्मल और उस प्रोसेस को आउट ऑफ कंट्रोल प्रोसेस कहते हैं. एवरीवन विथ मी? Yes. Yes, sir. मेरा एक काम कर दीजिए. I have been approached by 2 mutual fund companies. One which is HDFC, another कोई और कंपनी का नाम बताओ यार जो म्यूचुअल फंड बेचती है. ICICI, Nippon, Axis. Tata Birla. ICICI और एक्सिस दोनों फर्जी. एनीवन एल्स? Nippon, sir. Nippon. Tata Birla. Motilal Oswal. चलिए निपॉन कर लिया. HDFC approaches me and tells me that प्रणय आप मेरा म्यूचुअल फंड खरीदो. मैं पिछले 10 साल में एवरेज रिटर्न 10% का दिया हूं और हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन इज 1%. निपॉन कह रहा है मेरा म्यूचुअल फंड खरीदो, मेरा मीन इज 40 एंड माय स्टैंडर्ड डिविएशन इज आल्सो 40. कौन सा म्यूचुअल फंड खरीदो? कैलकुलेट करते हैं. DFC. कैलकुलेशन करते हैं. 68% क्या चांस है? मीन प्लस 1 स्टैंडर्ड डिविएशन, मीन माइनस 1 स्टैंडर्ड डिविएशन, मतलब इक्वल टू 10 माइनस 1. एवरीवन? Yes. 9. 10 प्लस 1. यस सर. तो मेरा 68% क्या चांस है कि कितना रिटर्न आएगा तुमको? 9 से 11. 9 to 11. या फिर 95% चांस क्या है? मीन +2. प्लस 2 टाइम्स +2. स्टैंडर्ड डिविएशन, मतलब 10 प्लस 2 12, 10 माइनस 2 8. उल्टा कर दिया मैंने. यहाँ 8, यहाँ 12 करता हूँ. सो 95% चांस क्या है? 8% से लेके 12%. 99.74% चांस क्या है? मीन प्लस 3, मीन माइनस 3. 10 प्लस 3 13, 10 माइनस 3 7. तो अनलेस समथिंग स्पेशल हैपन्स, मेरा रिटर्न कितना आएगा अगर अपन HDFC लेंगे तो? 7% से लेके 13% तक. अनलेस कोई कोरोना आ जाए, ट्रम्प दोबारा पागल हो जाए, खैर तो उसका इंट्रिंसिक बिहेवियर है. सॉरी, ट्रम्प तो रहे, अभी तो कुछ भी नॉर्मल नहीं है दुनिया में. कोरोना से ज्यादा बड़ी महामारी है यार. कोरोना से ज्यादा बड़ी महामारी है ट्रम्प. Right, sir. Very uncertain.
अगर अपन म्यूचुअल HDFC लेंगे तो कितना, अब इसका कैलकुलेट करो प्लीज, निपॉन का 99.73 क्या होगा, इक्वल टू मीन प्लस 3 टाइम्स स्टैंडर्ड डिविएशन, नहीं पहले तो माइनस करना है, सॉरी, माइनस 3 टाइम्स इक्वल टू मीन प्लस 3 टाइम्स निपॉन क्या रिजल्ट दे रहा है आपको, 40 to 160, 80 माइनस 80 to 160, कौन सा खरीदोगे? HDFC अपना सर, अपना HDFC चॉइस है, अगर आपको पंगा नहीं लेना है तो HDFC ले लो, अगर आपका रिस्क का एपेटाइट है, ये भी रिस्क तो है ले कि हम सकते हो तो हाँ, then you can go for a सर Nippon if you can take a risk. आप Otherwise 80% HDFC. depend on HDFC में डाल दो, situation. 20% निपॉन में। मेरा अपना पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है कि अगर आपके पास 10 ईयर का होराइजन है तो पैसा आपका 4 गुना हो जाएगा म्यूचुअल फंड में, अगर आप ठीक से खेलें तो 4 गुना। अच्छा, ट्रेंड भी तो मैटर करता है कि आपको थोड़ा और भी देखना पड़ेगा कि निपॉन का कैसा ट्रेंड रहा है। हाँ, बट आप एक बात समझ लो कि देर आर सम एरियाज जहां आप अगर आप केयरफुली खेलो तो आज इंडिया इज सच अ स्ट्रॉन्ग स्टोरी कि अगर ये ट्रम्प नहीं होता तो पॉसिबली यू वुड हैव बीन ग्रोइंग एट 9-10%। अगर ये पागल नहीं होता तो आप पॉसिबली अगले 4-5 साल में by 2030, 31, 32 possibly we would have been the most powerful economy of the world, but ट्रम्प अंकल आ गए और उसकी जो अनएंडिंग फ्रेंडशिप है चाइना से, टैरिफ सर, टैरिफ इज नो प्रॉब्लम सर यार। बहुत ज्यादा लगा दिया अभी तो। नहीं, मुझे तो उल्टा लगता है धर्मेंद्र कि टैरिफ लगा देने से हमारा बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा, बट उसका जो रोज का पागलपन है ना, चिड़िया उड़ कबूतर उड़, तो कल सुबह ब्राजील पे नाराज, परसों सुबह डेनमार्क पे हमला करेगा। आई डोंट नो यू गाइज रियलाइज दिस और नॉट, 3 दिन पहले उसने वेनेजुएला का एक ऑयल टैंकर पकड़ा है। 12 मिनट लेट थे न्यूक्लियर सबमरीन रशिया के, 12 मिनट लेट था। अगर वो रशियंस पहुंच जाते तो पॉसिबली अमेरिकन फट्टू होते, तो अमेरिकन तो आइडली भाग जाते, वो मार देता, जो एडमिरल उसको हैंडल करता है ना, जो रशियन न्यूक्लियर सबमरीन वो जो हैंडल करता है, इज कॉल्ड ग्लाशनॉफ। तो उसके बारे में कहानियां हैं कि अगर तुमने उसकी तरफ देखा तो वो गोली मार देता है, उस टाइप का पागल है। मतलब पुतिन का फेवरेट आदमी है वो, उसको तभी भेजा जाता है जब किल करना हो। आपने unless that something like that will happen, this is how your म्यूचुअल फंड विल रिएक्ट। आपका कॉल है, लेकिन सोच के देखो कल तक हम सारे फैसले कैसे करते थे? हम सारे फैसले करते थे बिना स्टैंडर्ड डिविएशन देखे हुए। नाउ थिंक ऑफ द सेम स्टोरी कि एक म्यूचुअल फंड वाला आया है, बोला हमारा एवरेज रिटर्न 10% है, दूसरा म्यूचुअल फंड वाला आया, बोला हमारा एवरेज रिटर्न 40% है। कौन सा लोगे? विदाउट स्टैंडर्ड डिविएशन तो निपॉन लुक्स लाइक गोल्ड, नो? आइंदा से कभी भी बिना वेरिएशन स्टडी किए हुए, बिना स्टैंडर्ड मीन, बिना स्टैंडर्ड डिविएशन के कभी नहीं देखना है। एवरीवन विथ मी? यस सर। Yes. जब कभी भी आपको Yes, कोई sir. मीन बेस्ड इंफॉर्मेशन हो, आपके टीम के 2 बच्चे का कंपैरिजन है, बोलो नथिंग डूइंग, गिव मी स्टैंडर्ड डिविएशन। नहीं तो वो भी निपॉन हो सकता है। उसका जिस दिन मूड किया तो वो 80 डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस कर रहा है, जिस दिन उसका मूड खराब है उस दिन वो 20 डॉक्यूमेंट प्रोसेस कर रहा है। इन माय डेज मैंने भी 1 साल लगभग ये एक्सेल में जॉब किया हूं। मैं तो फर्स्ट, हम लोगों को 4-5 क्लेम मिलते थे पर डे, मैं तो फर्स्ट 1-1.5 घंटे में 5 में से 4 खत्म कर देता था। पूरे दिन एक क्लेम करूंगा। अगर आप केयरफुली स्टडी करते तो आपको ये मेरी गोची समझ में आ जाती। आप मेरा स्टैंडर्ड डिविएशन अगर देखते तो आपको समझ में आ जाता। आप तो मेरा मीन देख रहे हैं, व्हाट इज द मीन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्रणेवल 5? वेरी गुड, टारगेट से ऊपर रहता है। अगर आप मेरी आवरली एनालिसिस करते
so you would have gotten the other side of the picture. Absolutely. अरे आप सोचो कि 4 कर ले रहे हो तुम 1.5 घंटे में और बाकी 8 घंटे में 1 कर रहे हो. Correct. Correct. Everyone, are we together on this concept normality का? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. मैं ये वीडियो आप लोगों को शेयर कर दूंगा and I will need you guys to go through this video several times because ये एक बहुत important concept है, बहुत important concept है जिससे पूरा सिक्स सिग्मा इम्पैक्ट होगा. यही है वो शेप जो अपन लिखे थे. We would want to understand what distribution data is following. If you look at your graphical summary also, stats, basic stats, graphical summary, quality score, press OK. यहाँ दिख रहा है आप लोगों को एंडरसन डार्लिंग नॉर्मेलिटी टेस्ट. एवरीवन, Yes, sir. Yes. Yes, दिस yes, इज sir. अ टेस्ट ऑफ नॉर्मेलिटी कि आपका डेटा नॉर्मल है या नॉन नॉर्मल है. अभी तो हमने नहीं पढ़ा है बट पी वैल्यू के बेसिस पे अपन डिसाइड करते हैं. इफ द पी वैल्यू इज ग्रेटर देन 0.05 वी कंसिडर कि नॉर्मल है डेटा. अगर पी वैल्यू 0.05 से छोटा होगा तो वी विल कंसिडर. तो यहाँ 0.05 से तो बहुत बड़ा है तो अपन वी आर सेइंग क्वालिटी स्कोर इज नॉर्मल. तुम्हारा सामान्य व्यवहार ये है कि तुम घटिया हो. तुम कभी कभार घटिया नहीं होते हो. दिस इज नॉर्मल. तो तुम्हारा नॉर्मल है कि तुम टारगेट नहीं मीट करते हो. भगवान भला करे तुम्हारे सिस्टम वो हिंदी में नॉर्मल नहीं बोलते हैं. यहाँ दवा की नहीं दुआ की जरूरत है. ये दुआ की जरूरत वाला प्रोसेस है. सोच के देखो कि तुम यू आर रेगुलरली इरेगुलर. यू आर रेगुलरली नॉट मीटिंग योर टारगेट. ब्लडी हेल. ये तो पूरा प्रोसेस रीडिजाइन का प्रोजेक्ट होगा. ये इंप्रूवमेंट का नहीं, रीडिजाइन का प्रोजेक्ट होगा. बिकॉज most of the time we are not meeting, greater than 75% time we are not meeting our target. Similarly, if we look at the collections data, p value less than 0.05. Everyone? Yes. मतलब डेटा मेरा नॉन नॉर्मल है. दिख ही रहा है इतना ज्यादा वेरिएशन है डेटा में. Redesign. करेक्ट. अपन एक और तरीके से ढूंढ सकते हैं. एक तो ग्राफिकल समरी से नॉर्मेलिटी कर रहे थे, एक और करेंगे नॉर्मेलिटी टेस्ट. ये सब पढ़ेंगे. दिस इज टू अर्ली फॉर यू बट वी विल लुक एट ऑल दिस. Fair everyone? We are good so far? Yeah.